السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولس۔ نامہ دل کرائی کے لیے خالی نہیں ہے بائی لائبہ ناصر کے ایپیسوڈ نمبر 11 سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح کسی میٹھے سے لمحے سے اس کی آنکھیں وقت سے پہلے ہی کھل گئی تھی۔ وہ تو فجر کی اذان کے ساتھ اٹھنے کا عادی تھا جس میں اب بھی کچھ وقت باقی تھا۔ اس کی نظریں اپنے کندھے سے سر ٹکائے سوتی ہوئی بیلا پر پڑی۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کے اس کے بے حد قریب تھی۔ یقیناً وہ نیند میں اس کے قریب آ گئی تھی اور اس کی نیند میں خلل کی وجہ بھی یہی تھی۔ علاقہ غیر تک تو آپ خود آ گئے ہیں جانا۔ اس کے بعد کھلے لبوں کو انگلیوں سے بند کرتے اس نے محبت بھری نظریں اس پر ڈالی۔ گلابی چہرے کے گرد بکھری اس کی یہ زلفیں بھی اسے اپنی حریف لگ رہی تھی جو اس کے دیدار میں خلل کا باعث بن رہی تھی۔ اس نے احتیاط سے اسے کچھ دور کرتے اس کا سر تکیے پر رکھا۔ وہ کسمسا کر دوبارہ اس کے قریب ہوتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ وہ سانسیں روکے اسے اپنے قریب دیکھ رہا تھا۔ کچھ ملکیت کا بھی احساس تھا۔ بکھرے لاپرواہ سراپے کے ساتھ وہ اس کے لیے امتحان ثابت ہو رہی تھی۔ اتنے مشکل میں مت ڈالے میری جان، بندہ بشر ہوں، بھٹکنے میں وقت نہیں لگتا۔ کوئی گستاخی سرزد ہو گئی تو آپ نے گناہ بنا دینا ہے۔ اس کی باریک گرم سانسیں نرم لمس اپنے گرد محسوس کرتے وہ بے بسی سے محو خواب وجود سے مخاطب تھا۔ نرمی سے اس کے نازک وجود کو تھام کر دوبارہ خود سے دور کرتے اسے ٹھیک سے لٹایا۔ بند آنکھوں پر سایہ فگن مڑی مڑی پلکیں سے شدت سے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ اذان کی آواز پر اس نے بے اسے دیکھا جو اب بھی نیند میں قابل تھی۔ بیلا اٹھ جائے ہنی، نماز پڑھ لے، اس نے نرم آواز میں اسے پکارا۔ بیلا! وہ پھر بھی نہیں اٹھی تو اس نے دھیرے سے اس کے گال تھپتھپائے۔ کیوں اتنی رات میں مجھے جگا رہے ہیں؟ آپ کی شرط بھی تو پوری ہو گئی تھی۔ وہ بچوں کی طرح پیر پٹک کر بول رہی تھی۔ نماز پڑھ لیں پھر سو جائیے گا، اس نے نرمی سے کہتے اسے ڈائریکٹ کھڑا ہی کر دیا تھا۔ آنکھیں موندے جھولتی ہوئی اسی پر گرنے لگی۔ بیلا آنکھیں کھولے، شاباش، نماز پڑھیں پھر اپنی نیند پوری کریں، سنجیدگی سے بولا۔ مجھے نہیں آتی نا۔ وہ اس طرح اٹھائے جانے پر روانسی ہو رہی تھی۔ سیکھ لیں، چلے آئیں، شاباش، کپڑے چینج کریں پھر وضو کریں۔ مجھے کوئی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا، کپڑے اس کے ہاتھوں میں تھماتے سے باتھ روم میں بھیجا۔ مجھے وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ کچھ دیر میں وہ لباس کیے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ نیند کے بعد آنکھوں میں گلال نمایاں تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو کافی فریش لگ رہا تھا۔ شاید وہ عادی تھا اتنی صبح اٹھنے کا۔ آ جائے، مجھے دیکھ کر کرتی جائے۔ کوئی دوپٹہ تو تھا نہیں اس کے پاس۔ اپنی چادر اس کے پہنا کر وہ اسے لیے اندر کی جانب بڑھا۔ وہ اسے دیکھ دیکھ کر مکمل وضو کر رہی تھی۔ چلیں اب میرے الفاظ دہراتی جائیں، بعد میں سب یاد کر لیجیے گا۔ اپنے پیچھے اس کے لیے جائے نماز بچھا کر اسے بنیادی فرق سمجھاتے اس نے شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ دھیمی آواز میں دھیرے دھیرے اطمینان سے پڑھ رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے اس کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ گلاس ونڈو سے نظر آتا ہوا ناریل کا پیڑ اس کی شاخیں چومتی جا رہی تھی۔ فضائیں مہکی مہکی لگ رہی تھیں، ہوائیں گنگنا رہی تھیں۔ وہ اس کی امامت میں نماز ادا کر رہی تھی۔ نماز ادا کر کے وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کتنا پرسکون تھا وہ۔ ایک طمانینت کا احساس تھا اس کے چہرے پر۔ دعا کر کے ہاتھ چہرے پر پھیرتے ہوئے اس کی جانب رخ کیے ہلے ہولے سے مسکرایا۔ وہ مسکرا بھی نہیں سکی۔ وہ اس کے قریب ہوتا اپنی چادر میں چھپے اس کی پیشانی پر لب رکھ کے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اسے اس کے لب حرکت کرتے معلوم ہو رہے تھے۔ اس سمے اسے وہ کوئی ساحل لگا جو اس کے گرد اپنی سحر کا طلسم باندھ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اسے بے بس کر رہا تھا۔ وہ اسے اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ اپنی چادر اس کے وجود سے ہٹا کر اپنے کاندھوں پر ڈالتا وہ اسے اپنی دوسری چادر پہنا رہا تھا، گویا دوسری چادر میں بھی اس کی خوشبو بسانا چاہتا تھا۔ آنکھوں میں حیرت لی سے تک رہی تھی۔ کوئی کسی کی خوشبو کا اتنا دیوانہ بھی ہوتا ہے کیا؟ ابراہیم ملک تو اس کی خوشبو سے بھی عشق کرتا تھا۔ ملتے ہیں جہاں میں کہیں اتنا چاہنے والے لوگ، اس قدر عشق میں ڈوبے لوگ۔ اس کا روم روم چیخ چیخ کر اسے ابراہیم ملک کے عشق کی صداقت کا یقین دلا رہا تھا۔ میں محبت میں شدت کا قائل ہوں، آپ کی سانس سانس تک کا خیال رکھنے کی صحیح کرتا ہوں۔ آپ ہنسیں تو اس کی ہنسی کا صدقہ پس کر لیتا ہوں۔ آپ محو گفتگو ہوں تو آپ کے تکلم کا صدقہ دیتا ہوں۔ آپ آنکھیں بھگوئیں تو میری جان پر بن جاتی ہے۔ آپ بولتے بولتے چپ کر جائیں تو اس کی چپی سے غائب ہو جاتا ہوں۔ آپ گھر سے باہر نکلیں تو میرے ہاتھ دعا کے لیے، میرے ہونٹ آیتیں پڑھ کر پھونکتے لگتے ہیں۔ وہ تو ابھی سے اس کے عمل سے کے شہر سے نہیں نکلی تھی کہ وہ لفظوں کا طلسم پھونک رہا تھا۔ آپ محبت نہیں ہیں بیلا، آپ عشق ہیں ابراہیم ملک کی۔ آپ سامنے ہوتی ہے نا تو میں پل کے بھی کم جھپکتا ہوں۔ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھنے کے کسی لمحے سے محروم نہ رہ جاؤں۔ وہ مزید بھی بولا تھا، اسی طرح اس کی پیشانی سے لب ٹکرائے۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ اسی طرح ساکت سی کھڑی تھی۔ یہ پہن لیں پلیز، سونے کی باریک چین جس میں زمرد کے کچھ پتھر جڑے تھے۔ وہ
हरे पत्थर का एक पेंडेंट था। ये पत्थर किस कदर बेशकीमत था इस वक्त बेला इब्राहिम मलिक को अंदाज़ा ही नहीं था। और तो जानता ही नहीं थी कि गुर्बत की इस चलती फिरती मशीन के पीछे कितने लोग भागते हैं, जितने लोग इसके इशारे पर क्या कुछ करने पर तैयार होते थे। वो खामोश रही। वो अब भी इजाज़त तलब नज़रों से इसे देख रहा था। हाँ, इसकी इजाज़त के बगैर वो कैसे पहना सकता था। इसे तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि वो ये हक इसे देगी। बेला ने खामोशी से चादर अपनी गर्दन से सरकाई थी। वो खुशगवार हैरत से इसे देखने लगा। सर को खम देते नरमी से इसके बाल आगे करके वो चेन इसकी गर्दन की जीनत बना गया। दूधिया गर्दन पर झूलता वो हरे पत्थर का पेंडेंट अलग से खुमारी पैदा कर रहा था। मैं इसे छू लूं? इब्राहिम ने ट्रांस की इसी कैफियत में इजाज़त तलब की। वह नासमझी से उसे देखते ही इस बात में सर हिला गई। होश तो आया जब इसके लम्स की तपिश अपनी गर्दन में महसूस हुई। और चेन को छूने की बात नहीं कर रहा था। वो झटके से पीछे हुई थी। सुर्ख चेहरा लिए चादर से जल्दी से अपनी गर्दन छुपा गई। वो इसकी हरकत पर खजल सा होता नजर चुरा गया। मैंने इजाज़त मांगी थी, वो धीरे से बोला। मैंने आपको ट्रक करने की इजाज़त नहीं दी थी, इस लॉकेट को देखने की इजाज़त दी थी। वो खफकी से बोली, फिर अचानक के गुस्से से इसकी जानिब आई। इसके कोई समझने से पहले दोनों हाथों से इसकी गाल पर नाखून काटती पूरी ताकत से अपना सर इसके थोड़ी पर मार गई। जितने जुल्म जितना तशद्दुद आप मुझ पर करती हैं, सोचे कभी मैं हिसाब लेने पर आया तो आप क्या करेंगी। अपनी थोड़ी सहलाते वो गंभीर लहजे में बोला, मैं आपका कत्ल कर दूंगी। वो इसकी आंखों में देखती इत्मीनान से बोली। वो गहरी सांस भरकर इसे देखने लगा। इस लड़की को बेवा होने का कोई दुख नहीं होगा। वो खुद ही खुद पर हंस पड़ा। रात की तारीकी अब सुबह की लौ देती हुई तपिश को घेर लाई थी। खिड़की के दर्दों से अंदर आती रोशनी इसकी नींद में खलल का बास बनी थी। हल्का सा कसमसा कर इसने आंखें खोली। वो बेड पर मौजूद नहीं थी, मतलब इसके उठने से पहले ही वो कमरे से निकल चुकी थी। शेरी। वो गहरी सांस भरकर उठ बैठा। निकाह के बाद तो वो मजीद दूर हो गई थी। पहले कम से कम साथ बैठती थी, इसके साथ काफ़ी अटैच भी थी, लेकिन अब इनके दरमियान एक बेनाम सी झिझक आ गई थी। वो जितने इस झिझक को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, वो इतनी ही ज़्यादा इसे सहमने लगी थी। सोफे पर इसके कपड़े रखे हुए थे, वाइट शर्ट के साथ ब्लैक ड्रेस पैंट, साथ टाई भी मौजूद थी, यानी वो इसके लिए कपड़े निकाल कर गई थी। टेबल पर वॉलेट, घड़ी, मोबाइल सब मौजूद थे। नहीं थी तो बस वो कमरे में मौजूद नहीं थी। वो इसकी हरकत पर मुस्कुरा उठा। इसकी बीवी इसके लिए कपड़े निकाल कर गई थी, ये जाने बगैर कि इसका शौहर आज से अपनी ड्यूटी पर ज्वाइनिंग दे रहा है, जो इसने अपनी यूनिफॉर्म में देनी है। इसका रिएक्शन सोचते इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। अस्सलाम वालेकुम। नाश्ते के टेबल पर पहुंचते इसके बुलंद आवाज़ में सलाम करने पर इन सबकी तवज्जो इसकी जानिब गई। जो पुलिस के यूनिफॉर्म में के वर्दी में मलबूस इनके सामने खड़ा था। सीएसएस के इम्तहानात पास करने के बाद इसने सिविल सर्विस ज्वाइन की थी। टेबल सेट करती शीरी की नज़रें उठी थीं। वो बेख्तियार इसे देखने लगी। इसका लंबा कद वर्दी और जूतों में और भी बुलंद लग रहा था। पूरे बाल, पूरी आंखें जो इस वक्त चमक रही थी। वर्जिशी बाजू वर्दी के हाफ स्लीव्स में वाज़ेह हो रहे थे। वह वाकई बहुत प्यारा था। वो छोटे छोटे कदम उठाते इनके मुकाबिला खड़ा हुआ। इसी तरह बेगम ने बेसाख्ता इसकी बलाई ली थी। अतर मलिक ने मुस्कुराते हुए फखर से इसे प्यार करते गले से लगा। इब्राहिम ने भी गले से लगाकर मुबारकबाद दी थी। वह सभी वाकिफ थे कि वह आज से ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है। सिवाय शीरी के वो इसे सरप्राइज़ देना चाहता था। सबसे तो लेता चेयर खिसका कर बैठ गया और इसे नज़रअंदाज कर गया था। न जाने क्यों, लेकिन शीरी का दिल एक पल को डूब सा गया। शीरी छोड़ो तुम ये सब, सवार को सर्व करो, और बेला तुम इब्राहिम को। वह एक साथ इन दोनों से मुखातिब हुई थी। शीरी को उन्होंने खासी सख्ती से पुकारा था, जबकि बेला के साथ अंदाज वैसे ही था, हर किस्म के एहसास से आ रही। वह निकाह के बाद से नोट कर रही थी शीरी का सवार को नज़रअंदाज करना इन्हें अच्छा नहीं लगा था। इसकी हालत के पेश नज़र इसे काफ़ी लाड से रखती थी। यही वजह थी आज इनका इस तरह पुकारने इसकी आंखें नम कर गया था। सवार का नज़रअंदाज करना उनका ये रवैया अंदाज पलकों को चिपक कर आंसू जब्त करती सवार के बराबर में आ बैठी। क्या लोगे? इसकी बड़ी आवाज़ में पूछने पर सवार को बेख्तियार इस पर प्यार आया, जिसका इजहार वो इस वक्त कतई नहीं कर सकता था। चाय सर्व कर दें प्लीज़, वो नम लहजे में कदम बगौर इसकी जानिब देख रहा था। जिस तरह बात मिलाते कप्पी से थमा गई। डांटे नहीं, इन्हें समझ आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। शीरी, इस तरह उदास होने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। सर झुकाए आंसू जब्त करते देख अफसर मलिक ने नरमी से कहा। इसी तरफ इसके आंसू देखकर नरम पड़ गई। जहर मारकर दो लुकमे लेती हुई चाय ठंडी हो गई का बहाना करती किचन में आ गई थी। सिंक के आगे खड़ी जब्त की आंसू बहा रही थी। नाश्ते के बाद अफसर मलिक और अतर मलिक इब्राहिम के साथ ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। फंक्शंस कल ख़त्म हो गए थे तो आज से सभी अपने मामूल पर आ गए थे। बेला भी सबके मना करने के बावजूद भी आज भी कैफे गई थी। यूँ भी वो आफ्टर शॉक्स मनाने पर यकीन नहीं रखती थी। जो दिन गुजर गया,
اس کی خوشی اور کمی بھی اس کے ساتھ ہی گزر گیا۔ یہ بیلا افضل ملک کا اصول تھا۔ اسی طرح بیگم سے دعائیں لیتا سیدھا کچن میں ہی آیا تھا۔ اس کے توقع کے مطابق وہ زور و شور سے آنسو بہا رہی تھی۔ چائے تو ابل ابل کر سوکھ گئی تھی۔ اس نے خود بھی بلیک جوڑا پہن رکھا تھا جس کی شرٹ پر سفید داغوں کی ابری ہوئی کڑھائی تھی۔ کالے دامن اور آستین پر سفید موتی جڑے تھے۔ سفید شیفون کا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے بالوں کی لمبی چوٹی اس کی پشت پر جھول رہی تھی۔ اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ مبارکباد بھی نہیں دیں گی مجھے؟ نرمی سے رخ اپنی جانب کرتے وہ دھیرے سے بولا۔ اچانک اس کی بھاری آواز سنتی اور سٹپٹا کر آنسو صاف کرنے لگی۔ مبارک ہو، سادی مبارکباد گویا اس کے منہ پر ماری گئی تھی۔ اتنی ٹھنڈی مبارکباد ڈیئر وائفی، ناک میں چمکتی نوز پن کو چھیڑتے ہوئے ہولے سے بولا۔ تم نے مجھے اگنور کیا، لب چباتی وہ دھیرے سے بولی۔ بالآخر شکوہ لبوں پر آ ہی گیا تھا۔ زبان نے خوشگوار حیرت سے اس کی جانب دیکھا تو گویا اس کا نظر انداز کرنا اس نے محسوس کیا تھا۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آپ بھی تو میرے ساتھ نیچے نہیں آئی؟ میں تو اس وردی میں سب سے پہلے اپنی بیوی کے سامنے آنا چاہتا تھا، اچھی سی مبارکباد وصول کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ تو میرے اٹھنے سے پہلے میرا خوف سے نیچے آ گئی۔ اس کی ناک سے اپنی پیشانی ٹکراتا اس کے آنسو صاف کرتے وہ مسکراتے لہجے میں بولا۔ زاوی، وہ اتنی قربت بڑی ہلکان سے ہو گئی تھی۔ میڈیسنز ٹائم پر لے لیجیے گا، 2 دن بعد آپ کا اپائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے پاس۔ وہ لب بھینچ کر اسے دیکھتا سنجیدگی سے کہتا دروازے سے نکل گیا۔ دیکھیں، میں آپ کو اس سے زیادہ پیکیج نہیں دے سکتی۔ ہمارا بھی اسمال سٹارٹ اپ ہے، کنٹریکٹرز پر تو اپنا پورا ریونیو نہیں لٹا سکتے نا ہم۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے شخص سے مخاطب تھی جس کی سی وی اس کے سامنے موجود تھی۔ جن اداروں سے اس نے تعلیم حاصل کی تھی اس کی بنیاد پر تو اسے بہتر سے بہترین 5 اسٹار ہوٹلز میں جاب مل جاتی، ایک سے بڑھ کر ایک نوکری ملتی بھی۔ یہ شخص اس کے ساتھ ہی کام کرنے کو کیوں ترجیح دے رہا تھا؟ اس کی جمع سے باہر تھا۔ ہم اتنا پیکیج ہی کافی ہے، آپ کا کیفے آنے والے سال تک انشاءاللہ تیار ہوگا۔ وہ مؤدبانہ انداز میں بولا۔ وہ کچھ سوچ کر سر ہلا گئی۔ اتنے کم پیکیج پر اتنا اچھا کنٹریکٹر مل رہا تھا، ڈیل بری تو نہیں تھی؟ آپ کی ڈگری جعلی تو نہیں ہے؟ وہ مشکوک نظروں سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ میم، وہ تو اس سرفری لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ پیکیج تو اسے اپنی اہلیت سے بھی زیادہ ہی مل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کل سے کام شروع کرتے ہیں۔ میں اپنا بجٹ آپ کو بتا چکی ہوں۔ آپ نے اسی بجٹ میں میرا کیفے تیار کرنا ہے، وہ سنجیدگی سے کہتی فائل اس کی جانب بڑھا گئی۔ وہ بھی پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتا اس کے چھوٹے سے آفس سے نکلا۔ توبہ، یہ لڑکی تو افسر کی وائف ہے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا کیفے سے باہر نکلا۔ ہیلو جی سر، کام ہو گیا؟ میم نے مجھے 20,000 پر منتھ بھر رکھا ہے۔ کیفے بنانے کے لیے ان کا ٹوٹل بجٹ یہی کوئی تقریباً 6 لاکھ تک ہے، لیکن جو اسٹرکچر وہ بتا رہی ہیں اس پر کم از کم بھی 50 لاکھ سے زیادہ لگیں گے۔ کیفے سے نکل کر اس نے اپنے باس کو کال کر کے تمام تفصیل دی تھی۔ وہ اس کے کیفے سے کچھ دوری پر اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس کے مینیجر سے بات کرنے کے بعد اور ڈرائیور کو جانے کا حکم دیتا اپنی چادر درست کرتا کیفے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ ایپرن پہنے تیزی سے کاؤنٹر سمیٹ رہی تھی۔ وہ دروازے سے ٹیک لگاتا مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا جب کاؤنٹر پر اکاؤنٹنٹ سے آج کی تمام سلپس لے رہی تھی۔ اکاؤنٹنٹ کو فارغ کرنے کے بعد تمام سلپس کو ایک فائل میں اٹیچ کر کے وہ فائل اپنے سامان میں رکھتی فیحہ کی جانب ایک لفافہ بڑھا رہی تھی۔ اس کے گال پر پیار کرتی وہ کچھ مزید پیسے اس کی مٹھی میں دبا چکی تھی۔ وہ اب بھی شیشے کے اس پار دروازے پر کھڑا اس کا ہر عمل دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر کسی سربراہ جیسی شفقت تھی، انداز میں ماؤں جیسی نرمی۔ ابراہیم کو اس وقت وہ بہت معصوم لگی۔ سارے ٹیبلز وہ پہلے ہی صاف کرنے کے سائڈ کر چکا تھا۔ اب وہ تینوں ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ یہ لو بیلا، گرما گرم چکن فجیتا، مرچیں ٹھوک کر نمک روکے، بالکل جیسا تمہیں پسند ہے۔ آج تم ٹرائی کرو، تمہیں پسند آیا تو پھر ہم اسے بھی اپنی مینیو میں شامل کریں گے۔ آہستہ آہستہ ہمیں اپنا مینیو بڑھانا چاہیے، لوگ تمہارے کیفے کو پسند کرتے ہیں اور تمہیں بھی۔ بیلا کے آگے چکن فجیتا کی ڈش رکھتے وہ اپنے انداز میں اپنے کھانے کی تعریف کرتی وہ ساتھ ہی کسی سیانے کی اسے مشورہ بھی دے رہی تھی۔ واؤ، تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے پیا۔ وہ فوق کی مدد سے ایک پیس منہ میں ڈالتی اسے سراہ رہی تھی۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ تم بھی کھا لو، سڑو نہیں۔ ان کی نوک جھوک سے محفوظ ہوتی بیلا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ بیلا باجی، یہ آپ کو منہ سے دور کر رہی ہے، وہ بھرے منہ کے ساتھ بمشکل بولا۔ بیلا، ہم مینیو میں ایڈ کر سکتے ہیں اسے؟ بیلا کے ہاتھ سے ایک نوالا کھاتے اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ ضرور، لیکن تم کیفے کے ساتھ اپنی اسٹڈیز بھی کنٹینیو کرو۔ پوگو کے ساتھ ہی میٹرک کی امتحان دو، اس کے بعد میں تمہارا ایڈمیشن ہیلتھ اینڈ فوڈ کے کسی کالج میں کرواؤں گی، اور کوکنگ کلاسز ابھی سے لینا شروع کرو۔ فارم لے کر آئی ہوں میں، فل اپ کر دینا، میں سبمٹ کروا دوں گی۔ اتنا اچھا ہنر ہے تمہارے پاس، اسے ویسٹ نہیں کرو میری جان۔ وہ ان دونوں کو کھلاتی ساتھ خود بھی کھاتی سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے تکتی اگلے ہی لمحے اس کے گلے سے لگی۔
बेला के हाथ यकदम साकत हो गए थे। पोगो भी हैरानी से बेला के गले से लगी पिया को देख रहा था। बेला की नज़रें बेख्तियार दरवाजे की जानिब उठी। दरवाजे पर खड़े इब्राहिम बेहोश में आया था। वह हैरानी से उसे देखने लगी। इसे तो पता ही नहीं चला वो कब आया था। इसे देख लेने पर भी वो छोटे छोटे कदम उठाता इनकी जानिब आ गया। इसे साकत देखकर उसने आंखों से इशारा किया था। इसका इशारा समझती पिया को साथ लगाए मुस्कुराई। क्या हुआ? काफ़ी देर बाद जब वह मुस्कुराती हुई खुद से अलग करती पूछने लगी, तुम बिल्कुल मम्मा जैसी हो। आंसू साफ करती सू करके बोलती। इसकी आंखें नम कर गई थी। पोगो ने हैरत से इस लड़की की जानिब देखा जो इस 2 साल में वो नहीं कर सका था, वो इस लड़की ने चंद दिनों में कर दिया था। कितनी आसानी से वो बेला को बता चुकी थी। तुम दोनों मेरे बच्चे ही हो। वो मुस्कुरा कर इन दोनों को देखती वो बोली। वो दोनों नम आंखों से उस बात में गर्दन हिला रहे थे। इब्राहिम ने फ़ख्र से इसकी जानिब देखा जो तशनगी इसकी आंखों में हमेशा रहती थी। वो इस हजरत में दूसरों को मुब्तला होने से महफूज रख रही थी। इब्राहिम भाई आप कब आए? इब्राहिम की मौजूदगी पर पोगो ने आंखें सुकेड़ कर पूछा। जब आप लोग अकेले चिकन फजीता खा रहे थे। वो मुस्कुराता हुआ बेला की प्लेट अपनी जानिब करता इसके बराबर में बैठ चुका था। आंखों में खफकी लिए इसे देखती ज़बरदस्ती मुस्कुराई। पोगो पहले पिया को इसके घर तक छोड़ो, इसके बाद अपने घर जाना तुम। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा इसे इन दोनों के लिए हल्काना होता देख रहा था जो न जाने कितनी ही बार पोगो को याद दहानी करवा चुकी थी कि पिया के साथ मुहाफिज की तरह रहेगा। सामने फूले सुर्ख गालों वाला बाजी का मासूम पोगो किसी ताबेदार बच्चे की तरह इस बात में गर्दन हिला रहा था। इन दोनों को बेचने के बाद वैसे साफ नज़रअंदाज करते हुए दरवाजे के पार रखे इस बॉक्स की जानी पड़ी। वो फूल अब भी से रोज़ मिलते थे, रोज़ाना एक ही कार्ड जिसमें बायत के अलावा भी कुछ अल्फाज लिखे होते थे। बेला के फूल और फूलों के साथ एक कार्ड। इसकी तवक्को के इन मुताबिक वहाँ मौजूद थे। वो खिलकर मुस्कुराए। साथ खड़े इब्राहिम इसकी मुस्कुराहट में खो रहा था। थोड़ी का वो खड़ा इसके साथ मुस्कुराता इसकी तमाम तर तवज्जो खींच रहा था। बेला चले वो संजीदगी से कहता इसके पीछे आ खड़ा हुआ। बस बात में सर हिलाती कार्ड हाथ में लिए दूसरे हाथ से फूल थाम इसके हमरा चलने लगी। बेला के फूल यानी दोस्ती की अलामत। चंद पलों की खामोशी के बाद इब्राहिम ने इसके हाथों से फूल लेते हुए कहा। वो खामोश रही। जैसा भी था बहरहाल इनके दरमियान हरा रिश्ता था। वह इसका शौहर था और ये बातें से तस्लीम करनी थी। ऐसे में वो दराब के बेचे फूल का क्यों इंतज़ार करती है वो खुद नहीं जान पा रही थी। लेकिन वो हर दिन शिद्दत से इन फूलों का इंतज़ार करती थी। तमाम दिन गाहे बगाए बॉक्स चेक करती रहती थी। दिन जरात के किसी भी पहर इस बॉक्स में इसकी लाइलमी में वो फूल रख जाता था। हाँ दोस्तों की रहमत, वो खोए खोए लहजे में बोली। इब्राहिम ने गहरी नज़रों से इसकी जानिब देखा। चंद पल देखने रहने के बाद आहिस्ता से इसके गिरदार बांध गया। उसने कोई मज़ाहमत नहीं की थी। वो इसकी जानिब नहीं देख रही थी। इसकी नज़रें तो तारकोल की सड़क पर थीं। इसने भी मजीद कोई बात नहीं की। दोनों के दरमियान खामोशी थी, गहरी गंभीर खामोशी। यह खामोशी भी इसे भली लग रही थी। आज से पहले तक वो इससे चंद फीट की दूरी पर चलता था। आज वो इसके हिसार में थी। इब्राहिम मलिक इस वक्त खुद को खुशकिस्मतों की फहरिस्त में सबसे ऊपर देख रहा था। आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं इससे मुतल्लिक, उसने नरमी से कहा। मैं नहीं चाहती, वो सादा से लहजे में बोली थी। इब्राहिम मलिक इसके लिए इतना अहम नहीं हुआ था कि वो अपनी ज़िंदगी के राज इसके आगे खोल देती। दूसरी जानिब इब्राहिम खैर महसूस तरह से खुद से इस जलन का शिकार हो रहा था। घर पहुंचकर इब्राहिम तो अपने कमरे में चला गया था जबकि वो किचन में आ गई थी। इसके जाने के बाद वह टेबल पर बैठे इसने कार्ड खोल कर देखा। तुम्हारी मैप फरोश आंखें मुझे घायल कर रही हैं। मैं तुम्हारी निगाहों से ओझल रहूं साहिरा। तुम्हारे खुमार में मखबूत होकर मैं दीवाना भी हो सकता हूँ मंगूल। इसके हाथ में एक तेल अपनी आंखों तक गए दिल अजेब ले पर धड़क रहा था। न जाने क्यों लेकिन इसे अपने इब्राहिम के रिश्ते का एहसास हो रहा था। वो किसी के निकाह में थी, इसकी बीवी थी। इनका रिश्ता जैसा भी हो लेकिन था तो वो इस बात से इनकारी नहीं कर सकती थी। मैं बेईमानी नहीं कर सकती। वो ज़ेर लब बड़बड़ाई। वो बेला अफसर मलिक थी। अपने रिश्तों के साथ हद से ज़्यादा मुखलिस ये अल्फाज से परेशान कर रहे थे। नीचे हमेशा की तरह एक नाम जगमगा रहा था, दुराब। और जो कोई भी दाग इसके एहसासात पढ़ लेता था इसकी रूह में उतरा हुआ महसूस होता था। गैर शनासाई के बावजूद भी इसकी रग रग से वाकिफ था। लेकिन वो कौन था? इतना कुछ कैसे जानता था? ये सवालात अब इसे बेचैन कर रहे थे। कुछ देर के बाद वह फ्रेश होकर आया तो वो कार्ड हाथ में थामे टेबल पर बैठी थी। अब बखौर इसके तासरात देखकर इसके सामने आ खड़ा हुआ। तमाम रात यहाँ मुज़ाकरात करने का इरादा रखती हैं, वह संजीदा सा कहता इसकी जानिब झुका। इसके आवाज़ पर होश में आई थी। खामोशी से उठकर कमरे की जानिब बढ़ गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। कंफर्टर में लिपटी वो छत को घूर रही थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता बेड के दूसरे किनारे पर आया। इसे खामोशी से चित लेते देख कर वो हल्का सा मुस्कुराता इसकी जानिब
झुका होले से इसकी पेशानी पलक रख के वहाँ के मीच गई। वो मुस्कुराता हुआ अपनी जगह पर इसकी जानिब रुख के लेट गया। नजरों की तपिश महसूस करते बेला ने इसकी जानिब देखा। वो इसकी जानिब रुख के इसे तक रहा था। क्या प्रॉब्लम है? वो चिढ़कर बोली। यही शख्स था इसकी परेशानी की वजह। ना वो इसके करीब आने की कोशिश करता, न इसे ये महसूस होता कि जरा आपके कार्ड का इंतजार करती। इसके बातों को सोचती वो इनके रिश्ते से बेईमान ये कर रही है। मैंने क्या किया है? वो मसलूमियत से बोला। इब्राहिम मलिक, आपकी ये सस्ती हरकतें मेरी ज़िंदगी डिस्टर्ब कर रही हैं। वो झिंझलाकर बोली। तो मतलब आप मेरी सस्ती हरकतों के मुतालिक सोचती हैं? वो निचला लपटबार मुस्कुराए। इसकी दिलकश मुस्कुराहट पर वो पहलू बदल कर रह गई। अब अगर आप मुस्कुराए तो मैं आपको कमरे से निकाल दूंगी। वो तब कर बोली। ये शख्स कहीं न कहीं से अपने मतलब की बात निकाल लेता था। क्यों? आपको अपील कर रही है मेरी मुस्कुराहट? मज़ीद दिलकशी से मुस्कुराते इसकी जानिब देखने लगा। बेला के दिल ने एतराफ़ किया था, इसकी मुस्कुराहट वाकई प्यारी थी। मर जाए मेरी बला से। वो इसकी जानिब पुश्त किए सोने की कोशिश करने लगी। आप हर वक्त मेरे मरने के ही बारे में सोचती रहती हैं। बेला को इसकी आवाज़ में कर्ब महसूस हुआ। वो गैर महसूस से अंदाज में इसकी जानिब घूमी। अगर आप कहते हैं कि मेरी मौत आपकी खुशी का बास है तो आपकी खुशी पर मेरी जान सदके, 100 बार सदके। जानिसार होती नज़रों से तकते हुए मोहब्बत से बोल रहा था। बेला का दिल एक पल को कांप सा किया, न जाने क्यों, लेकिन उसे बताना चाहती कि इसकी मौत इसकी खुशी का बास नहीं बनेगी, कभी नहीं। मोहब्बतें रुसवा कर देते हैं इब्राहिम। वो थके थके लहजे में बोली। इब्राहिम मलिक, मोहब्बत नहीं, इश्क करता है आपसे। आप मेरी सांसें भी छीन ले ना तो मैं आपको अपनी मोहब्बत के सदके वो भी दे दूँ। आप में ही तो सांसें बसती हैं, मेरे दिल आपको देख कर धड़कता। आप इब्राहिम मलिक की ज़िंदगी में नहीं तो इब्राहिम मलिक का वजूद ही नहीं। वो इसकी जानिब नहीं देख रहा था। वो खामोशी से इसे देखती नींद की वादियों में गुम होने लगी। गर्म सांसों की आवाज़ पर इब्राहिम ने इसे देखा। इसे नींद में बेखबर देखकर वो मुस्कुरा उठा। मेरी ज़िंदगी में वो दिन भी आएगा जब आप मेरी मौत का सोचकर कांप उठेंगी। मुझे शिद्दत से इस दिन का इंतज़ार है। कंप्यूटर पर दुरुस्त करते हुए दोबारा इसकी जानिब रुख करके लेट गया। इसके चेहरे का हर नक्श हिफ्ज़ करना इसका बेहतरीन मुश्किल बन जाता था। अगले दिन वो शीनी के रेगुलर चेकअप के लिए इसे लेकर डॉक्टर के पास मौजूद था। इसके चेकअप के बाद अब रिपोर्ट के इंतज़ार में डॉक्टर के रूम में मौजूद था। क्या हुआ? क्यों परेशान हो रही हैं? इसके सर पड़ते हाथों को हाथ मिली और नरमी से पूछ रहा था। वो लपकारती नफे में गर्दन हिलाने लगी। डॉक्टर के रूम में दाखिल होने और वो इनकी जानिब मुतवज्जह हो गया था। मेडिसिन के साथ आपको क्रीम भी दी थी शीरी। हैवी स्ट्रेस आउट होने की सूरत में या सीने में दर्द होने की सूरत में इस्तेमाल के लिए। इसके अलावा भी रेगुलर इस्तेमाल की दी थी। आप इस्तेमाल कर रही थी वो? डॉक्टर की बात पर जवार ने गहरी नज़रों से इसे देखा। इनकी निकाह को 1 हफ्ता होने को आ गया था। वो इसके कमरे में थी। इसने तो इसे कभी कोई मसाजिंग क्रीम इस्तेमाल करते नहीं देखा था। और डॉक्टर की बात पर आंखें मीच गई। जवार के सामने वो झूठ भी नहीं बोल सकती। नहीं, अब अभी इस्तेमाल नहीं कर रही। आंखें मीच कर जल्दी से बोली। जवार ने लब भींच कर इसे देखा। वह इस्तेमाल करनी थी शीरी, वो ज़रूरी है आपके लिए। डॉक्टर ने आसानी से इसे समझाया। वो उस बात में सर हिला गई। आप मुझे दे दें प्रिस्क्रिप्शन और इनकी डाइट और तमाम मेडिसिन के मुतालिक पूरी तफसील बताएं। वो जताती नज़रों से शीरी की जानिब देखते बोला था। अब नज़रें झुकाए लब काट रही थी। चले, अभी तो इंजेक्शन दे दिया है, ये अब बाकायदगी से इस्तेमाल करें। नेक्स्ट विजिट पे हम शीरी की मेडिसिन चेंज करेंगे। मुकम्मल तफसील से इसे तमाम बातें बताने के बाद मुस्कुराकर मुखातिब हुई। वो भी रस्मी सा मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। फ्रंट सीट पर बैठी वो की नखी से इसे देख रही थी जो संजीदा सा लब भींचे ड्राइविंग कर रहा था। घर पहुंचकर बिना इसकी जानिब देखे वो मजबूती से इसका हाथ थामे कमरे की जानिब बढ़ा था। इसकी तनी रगों को देखती वो दिल ही दिल में डॉक्टर को कोस रही थी। कमरे में दाखिल होकर डोर लॉक करके इसे बेड पर बिठाता वह संजीदगी से मेडिसिन में से कोई ढूंढ रहा था। जावी, इसने हिम्मत करके इसे पुकारा। खामोशी से लेटे। इसकी शाल उतार कर सर पर रखते हुए सख्ती से बोला। वो बिलक कर रोने लगी। खामोश हो जाएं। इसकी सख्ती पर इसके रोने में मजीद इजाफा हो रहा था। पर गौर से एक शीरी, 1 हफ्ते से आप ये इस्तेमाल नहीं कर रही हैं जबकि आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि ये कितनी ज़रूरी है। क्यों नहीं बताया आपने मुझे फिर? वह गुस्से से पागल होने आ रहा था। इसकी आवाज़ काफ़ी बुलंद थी। वो जो पहले ही कमरे का दरवाज़ा बंद किए जाने पर सहमी हुई थी, इसके इस अंदाज पर नफी में गर्दन हिलाती रो रही थी। क्यों नहीं बताया आपने मुझे? वो सुर्ख आंखों से इसे तक कदरे झुक कर पूछ रहा था। जवाब दे मुझे। इसका अंदाज किसी भी किस्म की नरमी से आ रही था। प्लीज़ इस तरह नहीं। वो क्योंकि सच में मुश्किल बोलने की कोशिश कर रही थी। कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ जवाब चाहिए। वो इसे रियायत देने के मूड में नहीं था। लेटे रहीं, एक कदम बेड से नीचे नहीं रखेंगी आप, वरना अंजाम की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। इसके संगीन लहजे पर वो बेजान मूरत की मानंद बेड पर टिक सी गई थी। इसके रोने से सकने को नज़रअंदाज करते हुए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक
मसाज करा था। वो लड़ती काम तो मुकम्मल इसके रहम और करम पर थी। तकलीफ के आसार इसके चेहरे पर वाज़ेह नजर आ रहे थे। बनोस इसी तरह लेटी सिसक रही थी। उठे, पानी पिए, बैठकर से टेक लगाकर इसे बिठाते, शाल इसके शानों पर डालकर पानी का ग्लास लबों से लगाया। बिना किसी मज़ाहमत के 2 घूंट पड़ते इसने नफी में गर्दन हिलाई। वो अब भी सिसक रही थी। बस हौले से इसे साह लगाते हुए नरम लहजे में बोला। वो सीने से लगी बुरी तरह रोने लगी थी। वह बकरी मम्मा लगाती थी। शादी के दिनों में मम्मा बिजी थी। वह बेला भी कैफे में बिजी थी। मम्मा ने डांटा भी मुझे, इसलिए मैंने नहीं कहा था। तो मुझ पर शाउट नहीं करो प्लीज़ भाभी, इस तरह नहीं करो। ज़बान ने खुशगवार इसकी जान में देखा जो डर सहम कर खामोश नहीं हुई थी। आज वो अपने मसाले से शेयर कर रही थी। मेरी पोजीशन भी तो समझो ना मेरी जान, आपकी ये लापरवाही मेरा बड़ा नुकसान कर देगी शीरी। इसे खुद में पीछे वो बेबसी से बोला रहा था। बस करें आप, ठीक है। उसके कसमसाने पर खुद से लगा था। इसका बेघर चेहरा साफ करते नरमी से सवाल किया। वो खामोश रही। यार अब बस करें ना अपने खफ की। सुर्ख होती नाक की नोक पर प्यार करते इसने प्यार से पूछा। इसकी खफ की पर मुस्कुरा उठा। इसके अंदाज में इसके ही सामने होती थी। दोनों हाथों की पूंछ से आंसू साफ करती। वो इसे बहुत प्यारी लगी थी। कॉफ़ी नहीं मिलेगी? चमकती लौंग उंगली से छूते हुए शरारत से बोला। मैं बना देती हूँ। जल्दी से उठ खड़ी हुई। वो कहका लगाकर हंस पड़ा। शाम के ढलते साहब में ऊपर गुलाल से भर रही थी। परिंदे अपनी मंजिल की जाने गामजंदे खिड़की की खुली होने की वजह से सर्द हवा कमरे में दाखिल हो रही थी। वो खिड़की के इस पार खड़ी आसमान की जाने देख रही थी। नीले आसमान पर जगह जगह हिलकोरे लेते सुरमई बादलों और सूरज की खुदामी सुर्खी कुदरत का ये हुस्न उसे मुस्मराइज कर रहा था। एक और दिन ख़त्म होने का था। कितनी तेज़ी से दिन गुजर रहे थे और इतने ही बेकैफ से। 4 माह हो गए थे इनकी शादी को और 4 माह में सवारी से इतनी मोहब्बत दी थी कि वो खुद अपनी किस्मत पर हैरान थी। वो इसका हर काम खुद करता था। इसके मामले में इसी तरह बेगम पर भी भरोसा नहीं था। इसकी मेडिसिन, मसाज, डॉक्टर का विजिट अपनी टफ शेड्यूल के बावजूद भी वह इसकी जानिब से लापरवाही नहीं बरतता था। किसी छोटे बच्चे की मानद वो इसका ख्याल रखता था। वो हर काम के लिए इसे अपना आदी कर चुका था। सुर्ख और स्याह के इम्तजाज का गर्म सूट पहने, सुर्ख रंग की शाल अपने गिर डाले वो सोचे में गुम बेखबर सी खड़ी थी। वह शायद कोई देर पहले ही नहा कर निकली थी। हल्के नम बाल कमर पर बिखरे हुए थे। कभी छोड़कर नहीं कि आदि बनाया और अब 2 दिन से शक्ल भी नहीं दिखाई। नौकरी को बीवी बना लिया जहाँ बीवी इनके इंतजार में मर रही है। वरना आंखों से बड़बड़ाई 2 दिन पहले रात को इमरजेंसी कॉल पर सवार किया था। वह सो रही थी तो वो सितारा बेगम को इसके पास छोड़ गया था। इसके जागने पर सितारा बेगम ने बताया कि किसी इमरजेंसी में ज़रूरत होने की सूरत इसे जाना पड़ा था। वो दिन महसूस कर रह गई थी। कल इसने इब्राहिम को कॉल की थी कि एक दिन मजीद वो घर नहीं आ सकेगा। वो अपने हालात खुद भी नहीं समझ पा रही थी। 4 माह वो पास था तो एहसास ही नहीं हुआ। 2 दिन से वो नहीं था। वह कमरा काट खाने को दौड़ रहा था। 4 महीने वो उसकी आदी हो गई थी। इसकी नरमी का असर था। कभी इसे अपने मसाइल बताने लगी थी। बिना डरे से बातें करने लगी थी। इनके रिश्ते में पहले जैसी बेतकल्लुफ़ी ना सही लेकिन काफ़ी हद तक तकल्लुफ़ की दीवार गिर चुकी थी। उसने कहा था इसे वक्त देगा तो पिछले 4 महीने से खुद पर ज़ब्त किए हुए इसकी दिली आमादगी का मुंतज़िर था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सबसे पहली नज़र इस दुश्मनी जहाँ पर गई। साथ ही मासूम से शिकवा भी समात की नज़र हुआ। मोबाइल, गन, गाड़ी की चाबी सारे टेबल पर रखता हुआ तकलीफ के बावजूद इसके शिकवे पर मुस्कुरा उठा। इसकी आंखें मुस्कुराहट ही तमाम थकान कहीं दूर जस हुई थी। बात भी नहीं करूँगी मैं, 2 दिन हो गए सबको कॉल करता है, मुझे कॉल नहीं की, मुझसे बात नहीं किया। ऐसे मोहब्बत नहीं ख़त्म होती ज़बरदस्ती। अपने सीने पर सुला कर आदत ख़राब कर दी, मेरी नींद हराम कर दी है। वो अब खिड़की से बाहर देखते अपनी भड़ास निकाल रही थी। लब दबाए कहकर रोकता हुआ इसके पीछे आ खड़ा हुआ। ये अंदाज, ये लाड इसकी शीरें के इसके ही आगे तो खोलते थे। शोहर की बुराई करने वाली बीवियों से अल्लाह नाराज़ हो जाता है। वाइफी इसके बालों की खुशबू को नथुना में उतारे वो खुमार लहजे में बोला। वो चली बुरी, मुझे कोई बात नहीं करनी अपने शोहर से। वो झंझला कर बोली। साथ ही से दूर होती खफकी से इसे देखने लगी। बात तो आप वैसे भी कोई नहीं करती अपने शोहर से। 2 दिनों में इतनी शिकवे जमा कर लिए मेरे खिलाफ। मोहब्बत इसके निकले निकले चेहरे को देखते इसकी नाक को सलाए जो ठंड की वजह से सुर्ख हो रही थी। सलोने से चेहरे पर खिड़की के वो दरजों से पड़ती सूरज की बदाई धूप इसे सुनहरा सा रूप बख्श रही थी। आंखों में नमी चमकते देख इसने हाथ बढ़ाकर नरमी से अपने करीब किया। किसी कीमती मता के माले जिसे पीछता वो हौले हौले इसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। सिर्फ 2 ही दिन जो इसे देखे बगैर गुजारे थे। वो इसे क्या बताता कि ये 2 दिन कितने भारी गुजरे इस पर। वो बिना किसी मज़ाहमत के इसके सीने से लगी खड़ी थी। यही शिद्दत, यही मोहब्बत और 2 दिनों से इसे तड़पा रही थी। मिस किया मुझे, नाक की नोक पर प्यार करते उसने मुस्कुराते लहजे में पूछा।
जोर शोर से नफी में गर्दन हिलाती वो दरबारा इसके सीने पर रख गई। सख्ती से दोनों हाथ इसके गिर्द बांध रखे तो गोया गिरफ्त नरम की तो वो फिर कहीं चला जाएगा। वो भरपूर अंदाज में कहकर लगाकर हंस पड़ा। इसका हर अमल जाहिर कर रहा था कि वो 2 दिनों में हर लम्हे से प्यार करती रही है। मेडिसिन्स लेती रही है ना वक्त पर, और मसाज लिया। अम्मा जान से कहकर गया था मैं कितनी कमज़ोर लग रही है, राय सही नहीं लेना मेरे पीछे। नरमी से इसके नाजुक वजूद को थाम मेरे पैर तक आते वह एक चीज़ का हिसाब ले रहा था। वो खामोशी से इसके साथ लगी सुन रही थी। इसे महसूस हो रहा था कि वो कितना ज़रूरी हो गया था इसकी ज़िंदगी में। तुम मुझे कॉल भी नहीं की, रात सबसे बात की मुझसे नहीं की। मैं अकेले से हो रही थी रूम में, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझसे मिलकर भी नहीं गए। मैं सो रही थी तो मुझे जगा कर मुझसे मिलकर जा सकते थे ना। वो लबों पर मुस्कुराहट ले इसके तमाम शिकवे सुन रहा था। आहिस्ता से इसका चेहरा उठाते चमकती लौक पर लब रखते गोया इसके लबों पर कप लगा गया था। वो लरजती लब भींच गई। और भी कोई शिकायत है? नरमी से काल सलाती उसने संजीदगी से पूछा। कोई शिकायत नहीं है। लरजती आवाज़ पर वो मुस्कुराता हुआ पीछे हटा। चले, अपने हाथों की मज़ेदार से कॉफ़ी पिला दे मुझे, इसकी गुरेज पर वो नरमी से बोला। न्यूज़ देखी आपने? इसकी बात पर इसने नफे में गर्दन हिलाई। न्यूज़ देखने में से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। चलिए फिर, कल रात आपके लिए एक सरप्राइज़ है। वो मुस्कुराता हुआ बोला। मेरे लिए? वो आंखें फैलाई इसे देखने लगी जो वार्डरोब से कपड़े निकाल रहा था। इसकी बड़ी बड़ी आंखों को मज़ीद बड़ी होती देख करीब आया। यूं तो ज़ब्त के इम्तहान न बना करे। आंखों पर लब रखते हुए इसे रास्ता छोड़कर बाथरूम में घुस गया। शाम का अंधेरा फैलते सुबह चांदनी में डूबा कैफे चांदनी की माना दमक रहा था। दूसरी जानिब कैफे के दूसरे हिस्से का काम भी जोरों पर था। ये नया कॉन्ट्रैक्टर वाहिद था जिसका काम बेलाबाजी को भाग गया था। वो कैफे बिल्कुल इसकी इमेजिनेशन के मुताबिक तैयार हो रहा था। बाहर दरख्तों पर सफ़ेदी और सुनहरी रंगत की पैसे लाइट से चमक रही थी। शीशे के दरवाजे पर काले रोड पर सुनहरी रंगत से लिखा था वी आर ओपन चमक रहा था। आसपास लड़के लड़कियां काम में लगे हुए थे। लकड़ी के मेज़ों के बीचों बीच रखे बेला के फूलों की खुशबू पूरे कैफे में बसी हुई थी। यह कल कुछ जल्दी आकर आप कपकेक्स तैयार कर लेना। मैं भी आने की कोशिश करूँगी। कल मुझे यूं नहीं जाना है, कल हफ्ता है। तुम जानती हो ना मेरी क्लासेस वीकेंड्स पर होती हैं। बैठे से मुहारा संडे फिरती भी ऐसे मुखातिब थी। मैं आ जाऊँगी, तुम बेफिक्र रहो, अभी ज़रा ये डो बना दूँगी। वो मसरूफ़ से अंदाज में सर हिला गई। वैसे बेला इब्राहिम भाई आज नहीं आए अभी तक तुम्हें लेने। वो मसरूफ़ अंदाज में बोल रही थी। अंदाज में वाज़ेह शरारत थी। 4 महीने के अरसे में वो रात के वक्त इसके कैफे आना इनके मामूल में शुमार हो गया था। शुरू के दिनों में इसने बहुत एहतजाज किया, लेकिन अब इसकी मौजूदगी पर वो खामोश रहती थी। वो रोज़ कैफे आता था। इस वजह से पीहू और पोगो से भी इसकी खासी दोस्ती हो गई थी। पोगो, टेबल नंबर 6, 2 क्लब सैंडविचेस, 4 ब्लैक फॉरेस्ट केक, जल्दी करो। इसकी बात को नज़रअंदाज करती बेला ने कुकिंग गिरे से आवाज़ लगाई। इसके गम में तो वो तो आज खुद भी महसूस करी। 3-4 माह में वो आदी हो गई थी वापस सुनसान सड़क पर इब्राहिम मलिक के हाथों में कैद अपने हाथ देखने की। वो रोज़ वापसी पर इसका हाथ थाम लिया करता था। इसके कदम से कदम मिलाकर चलता, खामोशी से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता था। कभी अपनी कातिल मुस्कुराहट से इसे पहलू बदलने पर मजबूर कर देता, कभी किसी अदा पर खुद पहलू बदल लेता। निस्ती वो जल्दी ऑर्डर ले जाओ, तैयार पड़ा है। टेबल पर चढ़ी पिया ने भी आँख लगाई। बाजी, ये टेबल नंबर 4 पर कौन लोग हैं? पोगो वहाँ से अंदर आया था। बेला के साथ पिया ने भी टटक कर इसे देखा। इसके एप्रन पर कॉफ़ी गिरी थी, चेहरे पर पास्ता लगा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने बड़ी प्लेट इसके मुंह पर मारी है। क्या हुआ, यहाँ मेरे पास आओ, कोई बात हुई है? हाथ साफ करते हुए इसकी जानिब भाई आंसू पीता इसके बैग में चेहरा रगड़ने लगा। पोगो, मेरे बच्चे, मुझे बताओ, बल्कि चलो मेरे साथ, किसने किया है ये? वो संजीदगी से कहते एप्रन उतारने लगे। स्टॉल इस वक्त किसने उतार रखा था? पोगो का हाथ थामे वो तैशने में बाहर आई। किसने किया ये? इस टेबल के करीब आती वो संजीदगी से बोली, जहाँ एक अल्ट्रा मॉडर्न लड़की के साथ एक सूट-बूट में मलबूस मर्द बैठा था। आसपास टेबल्स के लोग भी उठ खड़े हुए थे। इसके रेगुलर विजिटर्स इसके गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थे। अच्छा, वो आप आगे बेला साहिबा, कैसे बंदे रखे हैं आपने? इन्हें पता नहीं कि चीज़ें किस तरह पेश की जाती हैं। आपके इस जाहिल पेंडू मुलाजिम ने मेरे इतने एक्सपेंसिव ड्रेस ख़राब कर दिया। ये जानता नहीं कितनी कॉस्ट है इसकी। इसे देखते हुए लड़की ऑफिस से बाहर होती इस पर बरस पड़ी थी। क्या आप जानती हैं कि इज़्ज़त अनमोल होती है? ये मुलाजिम ही इस कैफ़े की ओनर का बेटा है। आपको हमारी सर्विस से प्रॉब्लम थी, आपने मुझे कहना था। आप हमारे पीठ बैक पर कंप्लेन करती हैं। ये मेरे बच्चे के साथ जो हरकत आपने की है, इससे तो आपकी जहालत वाज़ेह हो रही है। वो इत्मीनान से कहती टेबल पर झुकी थी। अगले ही लम्हे इस लड़की को समझने से पहले वो सामने रखा स्लश इसके चेहरे पर उलट चुकी थी। ठंडा स्लश चेहरे पर पड़ते वो पिलपिला उठी।
यू ब्लडी बिच, हाउ डेयर यू, वो चीखते इस पर चिपटने लगी। नाना, ये गलती नहीं करना, ये बेला अफसल मलिक का कैफे है, यहाँ गिव एंड टेक का असूल है। अभी तो मैंने कॉफ़ी का ही बदला लिया है। ये तुमने मेरे बच्चे पर डाली अब मजीद जहाँ अपनी सस्ती अदाएँ तुमने दिखाई, तो पास्ता का बदला मैं तुम्हारी निहारी में नहला कर लूँगी। इसके हाथों को मजबूती से थाम कर मरोड़ती और मुस्कुरा कर बोली। हैरानकुन बात सामने बैठे शख्स की खामोशी थी। वो इत्मीनान से इसे ये करते देख रहा था। दूसरे लफ्ज़ों में काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। इस शख्स के अपने बालों से अपने एक जानिब का चेहरा छुपाया हुआ था, दूसरी जानिब जला हुआ निशान था। बेला ने तो गौर नहीं किया, लेकिन दूसरी जानिब खड़ी किया। इस पूरे मामले के दौरान ये शख्स का इजाज़ा ले रही थी, जब मुस्कुराती नज़र से बेला को देख रहा था। चेहरा भले ही छुपा हुआ था, लेकिन आंखों की ये चमक इसे खासी जानी पहचानी सी लगी थी। और हीरो साहब, अब यहाँ बैठे पूरी फिल्म फ्री में देखने का इरादा रखते हो क्या? लेकर जाओ ये सस्ते आइटम को। लड़की ने झटके से सामने बैठे शख्स पर तकरीबन फेंक दी पप्पो को। कहा थामे से वॉश बेसिन की जानिब ले गई। यू विल पे फॉर इट, वो चीखती बोली। नॉट इवन अ सिंगल रुपी। वो रुख मोड़े बिना ही बोल कर जा चुकी थी। और शख्स इस वक्त जगती लड़की को तकरीबन घसीट कर वहाँ से लेकर जा रहा था। रिहा की डिटेक्टिव नज़रों ने इसका दूर तक पीछा किया। वो फर्स्ट एड बॉक्स टेबल पर रखती शीशे में जख्म का जायजा लेने लगा। कल ऑपरेशन के दौरान गोली कंधे को जोड़कर गुजरी थी। पर वक्त ट्रीटमेंट की वजह से कोई नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन इस हालत में वो शीनी के आगे नहीं जा सकता था। इसे कॉफ़ी के बहाने नीचे बेचकर वो शर्ट उतारे बुनियाद में मलबूस पैंटी तब्दील करने की कोशिश कर रहा था। साहबी, मम्मा कह रही है नीचे आ जा, पहले डिनर कर। वो जो अपने धुन में बोलती अंदर आई थी, आईने के सामने से जो खड़ा देखकर वह सरा से इसके करीब आई। ये क्या 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 हुआ? और लड़ती आवाज़ में कहती करीब आई थी। कंधे पर लगा गहरा घाव वो देख चुकी थी। शीनी, आप क्यों आ गई यार? ये बस छोटा सा जख्म है मेरी जान। और तभी बात लिया तो बैंडेज गीली हो गई। और नरमी से समझाता टॉवल डाल गया। ये छोटा सा जख्म है। इसके कंधे से टॉवल हटाती वो गुस्से से बोली। आंसू लड़ी की सूरत इसका चेहरा भिगो रहे थे। शीनी, मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, जरा आप रोए तो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, आपके सामने खड़ा हुआ, नरमी से बोलता इसे करीब करने आगे आया। हटो, नहीं आओ मेरे करीब। क्यों नहीं बताया मुझे? और रोते हुए पीछे हुई। पता नहीं कौन सा सांस रुला रहा था इसे, इसका लम्हा बलम्हा ख्याल करने वाला शोहर तकलीफ में रहा था और इसे खबर भी नहीं हुई। आ जाए शीरी, वो बेड पर इसकी जानिब पूछती इसका मुंतजिर था। इसे रोज वही कड़ी देखकर वो रोई फिर मेडिसिन लिए जख्म साफ करने लगा। और रोती हुई कुछ देर से देखते रहने के बाद आगे आई, इसके हाथ से कॉटन लेकर जख्म साफ करने लगी। कांपते हाथों से जख्म साफ करती मरहम लगाने लगी। शीरी, इसे खामोशी से जाते देख इसे कलाई से थाम कर साथ लगाया। इतनी ज़्यादा लगी उसे सख्त हुई बोली। मैं ठीक हूँ यार, मुझे नहीं पता था मेरी शीरी मुझसे इतनी मोहब्बत करती है। इसका चेहरा हाथों में भरे हुए नरमी से बोला। मैं खाना ले आती हूँ, फिर कॉफ़ी पी लेना। हाथों की कुछ आंसू साफ करते हुए सो करती हुई बोली। और सर को खम देता बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठ गया। कुछ ही देर में वह ट्रे में से खाना सजाए कमरे में दाखिल हुई। ये खा लो, पीछे गर्म दूध भी पी लो और मेडिसिन भी। वो धीरे से बोलते इसके सामने आ बैठी। आप खिला देना। वो चेहरे पर तकलीफ दे तासुर लिए बोला। दर्द हो रहा है? इसकी आंखें एक बार भीगने लगी थी। इसने खामोशी से निवाला इसकी जानिब बढ़ाया और मुस्कुराता हुआ आंखों में मोहब्बत ले इसके हाथ से खाने लगा। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।